एक्सोडस 29 चैप्टर 30 चैप्टर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से, गुजराती में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। थैंक यू जीसस। हम निर्गमन पढ़ेंगे, एक्सोडस पढ़ेंगे 29 चैप्टर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें वचन के अंदर लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા, તમે અમને આ વચનની અંદર લઈ આવ્યા માટે અમે તમને આભાર માનીએ છીએ। आपका आत्मा है जो हमको वचन से गहराई में रखता है। તમારો આત્મા છે કે જે અમને વચનની ગહેરાઈની અંદર રાખે છે। हमारे पास कुवत नहीं है तेरे वचन की तरफ मन लगाने का। हमारी अंदर काबिलियत नहीं कि हमें तुम्हारा वचननी अंदर मन लगावीए। पवित्र आत्मा ही काम कर रहा है। पवित्र आत्मा से कार्य કરી રહ્યા છે। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी पहचान देने के लिए। धन्यवाद આપીએ છીએ पवित्र आत्मा तुम्हारी ओळखाण આપવા बदल। नासरी यीशु मसीह के नाम में वचन हमारी समझ में आने दीजिए। यीशु नासरीના નામથી માંગીએ છીએ કે વચન અમારી સમજની અંદર આવે। विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। विनंती કરીએ છીએ परमेश्वर पिता, સાંભળો અને કબૂલ કરો। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे एक्सोडस 29 चैप्टर, द सैक्रिफाइस एंड सेरेमनीज ऑफ consecrating the priests, the continual burnt offering, God's promise to dwell among the children of Israel. First verse से पढ़ेंगे, and this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto me in the priest's office. Take one young bullock and 2 rams without blemish, and unleavened bread and cakes unleavened, tempered with oil, and wafers unleavened, anointed with oil of wheaten flour shalt thou make them. And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket with the bullock and the 2 rams. And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water. And thou shalt take the garments and put upon Aaron the coat and the robe of the ephod, and the ephod and the breastplate, and gird him with the curious girdle of the ephod. And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre. Then shalt thou take the anointing oil and pour it upon his head and anoint him. And thou shalt bring his sons and put coats upon them. And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them. And the priest's office shall be theirs for a perpetual statute. And thou shalt consecrate Aaron and his sons. And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock. And thou shalt kill the bullocks before the Lord by the door of the tabernacle of the congregation. And thou shalt take off the blood of the bullock, and put it upon the horns of the altar with thy finger, and pour all the blood beside the bottom of the altar. And thou shalt take all the fat that covereth the inwards, and the caul that is above the liver, and the 2 kidneys, and the fat that is upon them, and burn them upon the altar. But the flesh of the bullock, and his skin, and his dung, shalt thou burn with fire without the camp. It is a sin offering. Thou shalt also take Miriam, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram, and thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood, and sprinkle it around about upon the altar. देखिए, एक वचन को ध्यान दीजिए, अब गुजराती में ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 15 वचन पढ़िए।
सिन ऑफरिंग, ओके, सिन ऑफरिंग 14 वचन ओके, पढ़ के देखिए, वो पाप का बलिदान है। ઓકે. પણ વાછરડાનું માંસ તથા તેનું ચામડું તથા તેનું છાણ તું છાવણી બહાર અગ્નિથી પાડી નાખ, તે પાપાર્થાર્પણ છે. અને તું એક ઘેટો લે અને ઘેટાના માથા પર હારૂન તથા તેના દીકરાઓ હાથ મૂકે. आगे 16 वचन। અને તે ઘેટાને તું કાપ ને તેનું રક્ત લઈને વેદીની ચારે ગમ છાંટ. ठीक है। स्प्रिंकल इट अराउंड अबाउट अपॉन द ऑल्टर। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, सवाल पूछती हूँ, ठीक है। अब ये पाप का बलिदान है यहाँ पर बोला है, या तो बहुत पहले वचन से हम पढ़ते पढ़ते आए थे, तो ये सब विधि बताते बताते हम पहुंच गए 14 वचन तक, तब पता चला ये पाप का बलिदान बताया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको ये पूछती हूँ कि यहाँ पे ये सब विधियां करने से पाप का बलिदान कर दिया जाता है, मतलब पाप को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ओके, हाँ, यानी पाप सिन ऑफरिंग का मतलब क्या है? बलिदान, है ना, पाप का बलिदान, ठीक है। यानी पाप की खातिर बलिदान देना, समझ में आ रहा है? समझा? हाँ, समझा। पाप की खातिर बलिदान करना, ठीक है। यानी पाप है तो उसके लिए एक बलिदान देना है, ठीक है। हाँ, अब मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर, ये सारा चीज, ये सारा प्रकार जो किया जा रहा है विधियों के अंदर, इससे क्या क्या फर्क पड़ता है मनुष्य के अंदर, यानी इस्राएल, ओके, इस्राएल लोग जो मांस और लहू के मनुष्य जाति है, ठीक है, लेकिन उनको परमेश्वर ने अपनी जाति बनाया है, ठीक है। उनका पीढ़ी जो आया हुआ है वो अब्राहम से उसने सेपरेट किया, नूह के समय से ही उसने अब्राहम तक की पीढ़ी को संभाल के रखा, फिर अब्राहम से उसने अलग करके 12 गोत्र निकाले, 12 गोत्र से आगे इस्राएल शुरू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ ये जो है ना एरिया ऑफ लाइफ, ये परमेश्वर ने शुरुआत किया है, ओके। ये परमेश्वर की शुरुआत है कि मनुष्य, ये इस्राएल जाति जो है, ये और परमेश्वर दोनों के बीच में पाप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, यानी देखो, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ संबंध नहीं रखता है। ऑलरेडी भजन संहिता में हमने पढ़ लिया है, भजन संहिता में ऐसा लिखा है, धर्म और अधर्म के सिंहासन इकट्ठे नहीं लगते हैं, ओके। और 135 भजन संहिता में ऐसा भी लिखा है कि जो काठ के, मिट्टी के, ऐसे जो भी कुछ बनाते हैं फिर उसकी भक्ति करते, ऐसा जो भी करते हैं, उसके पास आंखें तो है, ठीक है, लेकिन देखना नहीं आता है, मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। शरीर ऐसा ढांचा तो बनाया हुआ है लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक जन को सवाल किया था, ऐसे कैसे है? फिर वही तो फिर बाद में हमारे लिए डरने का कारण बनेगा, ऐसा वचन भी लिखा है। वही फिर अगर हमने उनको भक्ति किया तो हमको वही डरने वाला कारण बन जाएगा, समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने ये बात किया था, ऐसे कैसे, वो तो डराते हैं हमको, और वचन कह रहा है डरो मत उनसे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कैसा नहीं डरने का? तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे उस समय क्या मालूम पड़ा, इसका मतलब क्या है, जो परमेश्वर की युक्ति है ना, ओके, वो समझ नहीं सकेंगे, ओके। जो परमेश्वर का भेद है ना, उनके पास वो नहीं रहेगा, ओके। जो परमेश्वर के रहस्य है ना, वो उनको नहीं मिलेगा, समझ में आया? इसके लिए जगत के अंदर कल हम बात कर रहे थे ना कि ऐसा कैसा ये लोग हमारे बारे में कर सकते हैं,
ऐसे कैसे किया, इनका फ्रीडम कहाँ पर है, हमको वो देखने की जरूरत है। ओके, हम सोच रहे थे ना ऐसा। तो यही वो बात है कि वो वही जानकारी से चलते हैं, हमारे पास वो जानकारी नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की जानकारी है। समझा आपको? हाँ, और परमेश्वर की जानकारी जो है ना, वही हमारा जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, भला और बुरा का फल मत खा। ओके, तो वही जानकारी परमेश्वर ने मना किया था, मत खा। समझ में आया? अगर तू उस जानकारी को लेगा भले और बुरे ज्ञान का, तो निश्चित मृत्यु है। समझ में आया? ओके, निश्चित मृत्यु है, तो परमेश्वर जीवन है। ओके, और मृत्यु से उसका क्या वास्ता? सही है ना? तो इसके लिए आदम और हवा को उसने उस बगीचे से बाहर कर दिया, क्योंकि उस बगीचे का सिर्फ जीवन के साथ वास्ता है। समझा? तो वो इंस्ट्रक्शंस जो आज दुनिया के अंदर चल रहा है ना, उस इंस्ट्रक्शंस में जीवन नहीं है। समझा? और इसके लिए वो इतना फैला हुआ है ना कि मनुष्य उसके अंदर पगला गया है। ये शक्ति, वो शक्ति, ये दिन, वो दिन, ये खाना, वो पीना, वो रहना, इतना गहरा डूब गया है उसके अंदर सब मनुष्य जाति कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब बस हम लोग सब कुछ बन गए हैं। ओके, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सच्चाई वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सच्चाई जो रखी है, वो सच्चाई परमेश्वर के पास से इन बातों में नहीं है। वो समझ में आया? आया समझ में? अब हमारे ऊपर चुनौती है, ये हमारे ऊपर चुनौती है। 99% लोग सब कुछ जानते हैं संसार में। अभी कुछ भी YouTube के द्वारा बोलो, बुक्स के द्वारा बोलो, लोगों के प्रचार, मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग सिखा रहे हैं आजकल, वो उस प्रकार से टीचिंग्स में से बोलो, कहीं से भी बोलो, आज बच्चा बच्चा जानता है एक अलग दुनिया है पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य अलग एक जगत है। समझ में आया? ओके, रहस्य कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, रहस्य कुछ बाकी नहीं है उस जगत का, उस संसार का। समझ में आया? अब वो संसार के अंदर हम रह रहे जहाँ पे सब कुछ एडवांस में चल रहा है, एडवांस। ओके, बहुत ज्यादा स्पीड में प्रगति करते जा रहा है वो सारे रहस्य की बातों में। समझ में आया? और वो इतना गहरा जा रहे, इतना गहरा जा रहे लोग इसके अंदर कि उनको लगता है ये ही दुनिया है, ये ही जीवन है। समझा? लेकिन वो बड़ा धोखा खा रहे, क्योंकि जो ये संसार के अंदर है, जगत के अंदर है, चाहे जितना गहराई में जाओ उन बातों को जानते हुए, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। सब कुछ परमेश्वर ने फेंक दिया है, कूड़ा करकट है वो। समझ में आया? हाँ, अगर ये कूड़ा करकट है, हाँ, इस कूड़ा करकट के बीच में हम रह रहे, ये कूड़ा करकट का हमको परेशानी हो रहा है, तो परमेश्वर ने वैसे ही पहले बोल दिया है, जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा वही जय प्राप्त करेगा। बराबर है ना? और जय कैसे प्राप्त करना है? यीशु के लहू के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और वचन के द्वारा। सही है? प्रकाशित वाक्य में दिया है जीत कैसे पाया जाता है, यीशु के लहू के द्वारा, गवाही देने के द्वारा, वचन के द्वारा। ओके, तो हमको ये दुनिया को जीतना है। समझा? इस दुनिया के तौर तरीके में बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है जो हमको इफेक्ट करता है। समझा? हाँ, तो परमेश्वर ने बोला इस इफेक्ट के बीच में तुमको 3 हथियार है, एक लहू है, ठीक है, एक गवाही है, और तीसरा वचन है। समझ में आया? तो यही बात हव्वा को बोला था कि तू क्या कर, भले बुरे ज्ञान का फल मत खा, क्योंकि निश्चित मृत्यु है। बराबर है? और हमको क्या बोला है?
हम अभी मसीह लोगों को क्या बोला है, ये अफेक्ट के बीच में तुम लोग 3 हथियार यूज करो, यीशु का लहू यूज करो और गवाही दो और वचन को यूज करो। ठीक है, अगर हम हव्वा की तरह करेंगे, जो मत करो कहा है, ठीक है, उसी के पीछे चले जाएंगे और हमको जो करो कहा है उसको हम नहीं करेंगे, तो हव्वा मृत्यु के साइड में चली गई, हम भी मृत्यु के साइड में जाएंगे। समझ में आया आपको? यस यस यस। ओके, हव्वा को बोला था तुम मृत्यु का फल खा मत, भले बुरे ज्ञान का फल खा मत। ठीक है, हमको बोला है तुम ओवरकम करो। ओके, तुम इस इफेक्ट को जीत लो, उसके ऊपर प्रबल हो जाओ 3 हथियार के द्वारा। समझ में आया? ओके, और अगर हम नहीं यूज करेंगे ये 3 हथियार तो ये अफेक्ट हमको निगल जाता है। समझ में आया आपको? ओके, तो हमारा यहाँ पर निगल नहीं जाना हमारा प्रूफ है कि हम 3 हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। समझा? ओके, आप विश्वास से गिरे नहीं, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे, मैं आगे आगे बढ़ते जा रही हूँ, हम आगे बढ़ते जा रहे। अपोजिशंस आ रहे हैं, ओके, विरोध आ रहे, कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, कभी बिल्कुल नहीं रहता है, हम बढ़ रहे, आगे जा रहे, हम विश्वास के दौड़ में दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे। तो इसका मतलब क्या है, हम यीशु का लहू भी यूज कर रहे, गवाही भी यूज कर रहे और वचन भी यूज कर रहे और हम जीतते हुए आगे जा रहे। समझ में आया? ओके, अब इस अफेक्ट के बीच में है, तो ये अफेक्ट के अंदर हम ये तीनों चीजें यूज किए जा रहे, तो हम कहीं ना कहीं तो निकलते जा रहे आगे। समझा आपको? ओके, तो हमको वो सब देखने की जरूरत नहीं है, ये कौन सा धागा और ये कौन सी मंजिल और ये कौन सी सीढ़ी और ये कौन से प्रकार की, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। समझा? ओके, अगर हम ये 3 हथियार यूज कर रहे, काफी है हमको जीतने के लिए। आमीन। और संसार के अंदर जो है वह सब झूठ है। ओके, हमारे पास ये 3 हथियार है। ये क्या है? ये सच्चाई है। समझा? ओके, तो कौन जीतता है? झूठ जीतता है या सच्चाई जीतता है? आप बताइए। ओके, तो अब हमारी जीत सच्चाई के अंदर रुकने की वजह से होगी। अगर हम संसार क्या कर रहा है ये इसके पीछे चले जाएंगे ना, तो हम हार जाएंगे। समझ में आया आपको? राइट। ओके, अगर हम संसार क्या कर रहा है इस तरफ हम देखने के लिए जाएंगे ना, हम हार जाएंगे। ओके, ये इफेक्ट क्या है? ओके, ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है, ओके, इसकी गहराई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ओके, ये कितना ऊंचा है, ये कितना नीचा है, ये कितना फैला हुआ है, अगर ये देखने जाएंगे ना हम भटक जाएंगे हम। समझ में आया आपको? हाँ, तो हम जो करने के लिए बोला है हमको, हम वो नहीं करेंगे ना, तो हम निश्चित है हार जाएंगे। समझा? नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके, आपको जो बोला है उसको करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो ये इफेक्ट के बीच में है आप लोग। ओके, फिर अगर आप बोलेंगे मुझे ऐसा महसूस होता है या वैसा मुझे कुछ लगता है या मुझे ये ड्रीम आया या मुझे ये कुछ ऐसा कुछ तो सुनने को आया, कोई कॉम्प्रोमाइज का जवाब नहीं है। आपके पास 3 हथियार ऑलरेडी है। ओके, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझा? अगर आप ये 3 हथियार यूज करेंगे तो आपको कोई मुश्किल दिखेगी नहीं, क्योंकि ये तीनों हथियार आपके हाथ में है। यीशु का लहू भी आपके पास है, वचन भी आपके पास है, गवाही भी आपके पास है। आपको क्या चाहिए और? सोच के देखिए। अब आपको चाहिए सिर्फ क्या मालूम, इसका इस्तेमाल करना। तो आप मुझे बताओ, अगर हव्वा ने अनाज्ञाकारिता किया, भले बुरे ज्ञान का फल खा लिया, बराबर है, उससे क्या हो गया? उसका अंत क्या लिखा था? निश्चित मृत्यु। राइट,
हाँ, राइट। उसने उस वक्त अपना दिमाग ठंडा कर लिया, परमेश्वर के विरोध कर लिया, और फिर वहां पे जाके उसने वो फल खा लिया, निश्चित मृत्यु प्रवेश किया उसके अंदर। हाँ, हम भी राइट। जब राइट। परमेश्वर कहता है तुमको इस इफेक्ट के बीच में, अंधकार के इफेक्ट के बीच में तुमको 3 चीजें हैं। एक, यीशु का लहू यूज करो, दूसरा गवाही बोलो, और तीसरा वचन बोलो। ठीक है, अगर तुम ये 3 हथियार को यूज नहीं करेंगे तो इफेक्ट निश्चित है कि हमको गुमराह कर देगा। समझा आपको? ओके 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 ओके। ओके, राइट राइट। आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब इफेक्ट कर रहा है ना वो, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन जैसे ही वो इफेक्ट का वो भला बुरा फल का खाना और मृत्यु ने प्रवेश करना, उसका इफेक्ट आज दुनिया देख रही है ना? तो वैसा ही ऑन द स्पॉट इफेक्ट नहीं दिखता है आपको। ओके, ऑन द स्पॉट आपको फर्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी संकट के विरोध में ये 3 हथियार यूज नहीं किया, उसका रिजल्ट, नतीजा आपको मालूम पड़ेगा। ओके, चोरी नाश घात रहता है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम रहने तो, कोई भी बीमारी रहने तो, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी नेगेटिव रहने तो, आपको ओवरकम करने वाला हथियार उठाना ही पड़ेगा। समझा? अगर आपने नहीं उठाया, वहां पर शत्रु ने कुछ ना कुछ बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। समझा? चलो, उस दिन आपको नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ महीने नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ साल, महीने, दिन, जो भी टाइमिंग है, आपको वो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो जाएगा आपका। समझ में आया? क्योंकि वो निश्चित मृत्यु निश्चित है। वो अगर परमेश्वर के नहीं मानते हो तो उसका ऑपोजिट होना ही होना है। उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके, इसके लिए यीशु मसीह का हमारे अंदर का प्रभाव मालूम करके हमको जीना है। यहाँ देखो, परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। ओके, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने रास्ता दिखाया, ये इस तरह का रास्ता, तुमको पाप अगर है तो बलिदान करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो बलिदान के चीजों को उसने चुनाव किया, मनुष्य ने नहीं। विधि उसने बनाई, मनुष्य ने नहीं बनाई। अब ये सारे विधि को अगर आप एक एक छांट के अगर लिस्ट बनाओगे और उन सारी चीजों के बारे में जानकारी निकालना शुरू करोगे, तो इतना गहरा आप फंस जाते हैं उसके अंदर कि हम सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे, क्या परमेश्वर ने ये सब ऐसा 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 करने का बताया, ये रहस्य क्या है इसके अंदर। तो आप अब्राहम को याद करो, जब वो 400 साल के बंधुआई में जाने वाले बोला गया था, तब उस वक्त में उसके पहले उसको बोला था, तू, तेरे और मेरे बीच में एक वाचा होने वाला है, इसके लिए कुछ ऐसे ऐसे पशु पक्षी मार के ऐसे ऐसे रख दे। और उस समय में उसको गहरी नींद आ गई थी, अंधेरा छा गया था, गहरी नींद आ गई थी। राइट, ये समय में क्या हो गया उसके साथ? ओके, ये समय में गहरे अंधेरे के बाद में एक आग निकली वहां से, और वो आग उस पशु पक्षी के बीच में से होकर चीरते हुए निकल गई। ठीक है, हाँ, किसी को नहीं मालूम क्यों परमेश्वर ने वही पशु पक्षी लिए। ओके, क्यों परमेश्वर ने ऐसे 2 टुकड़े करके दोनों साइड से रखने के लिए बोला, किसी को नहीं मालूम कि परमेश्वर का चलना कैसा है। आपको समझ में आ रहा है? समझा? परमेश्वर कौन से रास्ते से आता है किसी को नहीं मालूम है। समझा आपको? हाँ, वचन क्या कहता है? अगर दुष्ट आत्मा एक रास्ते से आता है, 7 मार्ग से वह भाग जाता है। आपको पता है वो 7 मार्ग कौन से है? नहीं मालूम। हाँ, इसके लिए परमेश्वर बोलता है, जो भेद मुझे मालूम है उसी भेद में बने रहो, क्योंकि शैतान के पास भी भेद है। समझा? समझ में आया? ओके, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे, अगर तुम हथियार नहीं चलाओगे, अगर यीशु मसीह का लहू नहीं चलाओगे, अगर गवाही नहीं चलाओगे, अगर वचन नहीं चलाओगे, तो
तुम कौन से रास्ते में जाते हो, डेफिनेटली तुम शैतान के सामने जा रहे हो। समझ में आया आपको? नो कॉम्प्रोमाइज, बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ हो जाओ, या तो आप जहां परमेश्वर का वचन आप यूज नहीं करेंगे, आप सीधे निकल जाते हैं अधर्म के रास्ते में। तो यरीहो की तरफ जाने वाला इंसान क्या किया? अधमुहा होके गिरा। बराबर है? राइट। हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है और परमेश्वर हमारे पास आने का रास्ता है। ये रास्ता है उसका, समझा? ओके, ये रास्ते में से शैतान नहीं आ सकता है। समझ में आया? ये रास्ते से सिर्फ मनुष्य इस्राएल लोग जा सकते थे। ओके, ये सेम बलिदान, ये जैसा विधि लिखा है, ये सेम विधि अगर कोई शैतानी इंसान ने किया ना, ओके, तो वो परमेश्वर तक पहुंचता नहीं है। ये सेम विधि, समझ में आया आपको? समझा? परमेश्वर के पास पहुंचने का ये रास्ता अब बाइबल में लिखा है, ठीक है, कि पाप माफ होता है, इससे पाप खत्म हो जाता है। ठीक है, इजराइल लोगों ने ये सारा विधि पूरा किया। ओके, अब जब ये पूरा कर रहे होते हैं ना, तब वो एक रास्ता चल रहे होते हैं उनके स्पिरिट के अंदर से। समझा आपको? समझा? वो एक रास्ता चल रहे होते हैं स्पिरिट के अंदर से। अब जब वो पूरा विधि कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो रास्ता पहुंच गए होते हैं जहां परमेश्वर उनका इंतजार कर रहा होता है। समझा? राइट। चलो पीछे पलट जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे 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 स्टेप बाय स्टेप पीछे निकल जाओ। ओके, अभी तक विधि पूरी नहीं की, वो पीछे एकदम स्टार्ट में चले जाओ। अब देखो परमेश्वर कहाँ खड़ा है? विधि के बाद खड़ा है, विधि के पहले नहीं खड़ा है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, तो उन दोनों का कांटेक्ट स्पिरिट टू स्पिरिट कांटेक्ट नहीं हो सकता है। समझा आपको? ओके, मनुष्य का शरीर परमेश्वर नहीं बोल रहा है, लेकिन आत्मा से आत्मा अगर परमेश्वर का होना है तो आत्मा में पवित्रता होनी जरूरी है, और मनुष्य का पवित्रता खो चुका है। ठीक है, और इसके लिए मनुष्य पवित्र होना चाहिए तो उसको पहले उसके स्पिरिट को ट्रीटमेंट देके लाना पड़ता है। समझ में आया? और वो ट्रीटमेंट चलने का रास्ता शैतानी लोग नहीं चल सकते हैं। समझ में आया? कोई परमेश्वर के उस रास्ते से चल के नहीं आ सकता है। समझ में आया? हाँ, तो ये था पहले स्पिरिट का वॉक। समझा? जो इजरायली लोगों ने शरीर से कृत्य करते 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 वो स्पिरिट का वॉक पूरा पुराना नियम चलाया। समझ में आया? तो उनको भेद मालूम ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। ओके, तो वो उसमें प्रैक्टिस हो गए। ओके, उनको कंटाला नहीं आता है, कुछ नहीं आता, उनको मालूम है ये रोज का जरिया है, रोज करना है। हम लोग जैसे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पढ़ते, प्रेयर करते हैं, आमेन बोलते, बंद करते। अरे लेकिन आपको पता है क्या कर रहे हैं हम लोग स्पिरिट वॉक कर रहे हैं। ओके, अगर ये वॉकिंग करते हैं ना तो फिर अंत में परमेश्वर खड़ा है हमारे लिए, इसके पहले नहीं। समझ में आया? समझा? तो आप और हम आत्मा के चाल चलने की वजह से हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, परमेश्वर हमारे तक पहुंचता है। ओके, वो हमारा चैनल है, लेकिन यही चैनल दुष्ट आत्मा नहीं जानता है। यही चैनल परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के जन के अलावा किसी को नहीं मालूम है। बाइबल सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन ये वाला स्पिरिट का चाल जो है ना, ये चाल केवल परमेश्वर ने जिनको अपने राज्य में लिया है, वही ये चाल से चल के परमेश्वर तक पहुंच सकता है। समझ में आया? समझा? इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है कि हम इस चाल को डेली चलते रहे। कोई मसीह ऐसा नहीं रहेगा जो ये चाल नहीं चल रहा होगा। समझा? क्योंकि यही के लिए पवित्र आत्मा दिया है मसीहों को। ठीक है, यही अंदर हमारा ये एक इंग्रेडिएंट है कि हम मसीह कहलाते हैं, कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है।
समझ में आया? अब हमारा स्पिरिट का पहचान क्या है मालूम है? अब हमारे स्पिरिट का पहचान पवित्र, ये हमारी पहचान है। समझा? अब शरीर से आप कैसे आपकी बदनामी होती है, शरीर से आप कैसे तुच्छ जाने जाते हैं, ओके, शरीर से आप कैसे परेशान कर दिए जाते हैं, ये सारा एरिया ऑफ लाइफ, शरीर के ऊपर होने वाला सब कुछ आपको 3 चीजों से जीतना है। ओके, एक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का यीशु का लहू और आपकी गवाही। ओके, डेली 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 डेली, हर पल, हर दिन, हर समय हम क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु तेरे लहू से हम धोते अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, तेरे लहू के कारण हमारे पाप माफ हो गए। हम क्या कर रहे हैं मालूम? हमारे स्पिरिट को आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं हम। समझ में आया? राइट। ओके, हाँ, तो अंधेरे को हम क्या करते जा रहे? अंधेरे को काट के उजियाले में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे। समझ में आया? अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे, अगर हम रेगुलर हमारा आत्मिक चाल बढ़ाएंगे नहीं, तो अंधेरा हमारा हमको आड़े बैठता है। समझ में आया? ओके, वो आड़े बैठता है, हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। ओके, और जब आड़े आ गया, संघर्ष बढ़ गया, और फिर भी हम यीशु का लहू यूज नहीं कर रहे, फिर भी हम वचन नहीं पढ़ रहे, ऐसा ही करते रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो फिर हमको आगे बढ़ाने का जोर लगाने वाले अभिषिक्त दास दासियों का हम पीछा करते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम करते हैं इसको? तो हम क्या कर रहे हैं? ये स्पिरिट वॉक कर रहे हैं। ओके, अगर स्पिरिट वॉक रोज करते रहोगे तो आदम के पास परमेश्वर रोज आता था मिलने के लिए, है ना? तो हमारे पास भी परमेश्वर रोज हमारे लिए हमारे साथ बातें करते बैठेगा। समझा? लेकिन ये स्पिरिट वॉक के बिना हम नहीं आगे जा सकते हैं। समझ में आया? समझा? कितना पावरफुल परमेश्वर है हमारा, कि हमको जो देता है वो अहरे गहरे सबको नहीं पता है। महारथी बैठे दुनिया के अंदर, पता नहीं है उनको ये बात। ओके, एक सेकेंड में मम्मी को देख के आती हूँ। ओके, तो अब आपको समझ में आया ये रहस्य कि इजराइल लोग क्यों चलते थे ऐसा? उनको कितना कुछ करना पड़ता था, कितना कुछ करना पड़ता था, है ना? लेकिन एक बात है, अगर उन्होंने नहीं किया ना, तो परमेश्वर के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। क्या बोला परमेश्वर ने? अगर खतना किया तो वो मेरा है, अगर खतना नहीं किया हुआ है वो मेरा नहीं है। हाँ, और वो फिर भी अगर आपके बीच में है तो उसको नाश कर दूंगा मैं। समझ में आया? ओके, तो हमारी एलिजिबिलिटी परमेश्वर डिसाइड करता है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और खुद परमेश्वर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कुरनेलियुस को बपतिस्मा दिया, फिलिप्पुस ने जाके वो किसको, खोजा को बपतिस्मा दिया, बराबर है? ओके, खुद परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? जो वो कह रहा है और हमको मानना चाहिए, हम बोल रहे हैं नहीं 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 माना तो भी चलेगा। कैसे चलेगा? परमेश्वर कहता है ये करो और हम बोल रहे नहीं किया तो भी चलेगा। कैसे? क्या समझा आपने? गलती हमारे स्पिरिचुअल वॉक में क्यों पावरलेस हम हो जाते हैं, क्यों डिफीटेड हो जाते हैं, ओके, क्यों हम पीछे हटने लगते हैं, क्यों हम धीरे धीरे हो जाते हैं, स्लो चलना शुरू करते हैं आत्मिक रीति से, ओके, क्योंकि हमारे अंदर का अनाज्ञाकारिता। अगर आप स्पिरिचुअली टाइट नहीं रहेंगे, ओके, स्पिरिचुअली एकदम अपने आप को तंग करके नहीं रखेंगे, हाँ, फिर आप भूल जाइए परमेश्वर के राज्य के बेनिफिट्स, वही अच्छा रहेगा। ओके, आपका कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं चलता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के लिए रास्ता नहीं रखा है। अगर आप अनाज्ञा करोगे मृत्यु के साथ चले जाओगे वो रास्ते से।
ओके, अगर आप आज्ञा पालन करोगे जीवन के रास्ते से आएंगे आप। ओके। समझा? बीच में कोई रास्ता नहीं है। कितना डेंजरस जोन है ना। बराबर है। उससे अच्छा आज्ञा पालन करते चलो। है ना? ये बड़ा धोखा लेने से अच्छा आज्ञा पालन करो और किसी को ये ना सिखाए ये किया तो भी चलेगा, ये नहीं किया तो भी चलेगा, मुंह बंद करके हम आज्ञा पालन करना बेहतर रहेगा। आई थिंक सो, है ना? ओके, 15th वर्स पढ़ेंगे। Thou shalt also take one ram, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram, and thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood and sprinkle it around about upon the altar, and thou shalt cut the ram in pieces, and wash the inwards of him and his legs, and put them unto his pieces and unto his head, and thou shalt burn the whole ram upon the altar. It is a burnt offering unto the Lord. It is a sweet savour, an offering made by fire unto the Lord. And thou shalt take the other ram, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram. Then shalt thou kill the ram, and take of his blood, and put it upon the tip of the right ear of Aaron, and upon the top of the right ear of his sons, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and sprinkle the blood upon the altar round about. 20 वचन देखो गुजराती में क्या लिखा है। ओके। પછી તું તે ઘેટાને કાપ ને તેના રક્તમાંથી લઈને હારૂનના જમણા કાનની ટોચ પર તથા તેના દીકરાના જમણા કાનની ટોચ પર તથા તેઓના જમણા હાથ અંગૂઠા પર તથા તેઓના જમણા પગના અંગૂઠા પર તું તે રક્ત ચોપ ને તે રક્ત વેદીની ચારે ગમ છાંટ। 1 मिनट, आप मुझे बताओ हम कैसे स्प्रिंकल करते यीशु मसीह का लहू? हमारे घर के ऊपर, हमारे चौखटों के ऊपर, हमारे जमीनों के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर। समझ में आ रहे हैं आपको? ओके, ये सारे एंट्री पॉइंट्स रहते हैं जहां से दुष्टता एंट्री करती है। समझ में आया? अगर ये एंट्री पॉइंट्स को हमने यीशु के लहू में कवर किया तो परमेश्वर एंट्री करता है। समझा आपको? अगर हम बोलेंगे यीशु के लहू से हमारे घर को हम कवर करते हैं, आपने कवर किया, आपको लग रहा है आप सैतान से प्रोटेक्शन करने के लिए आपने यीशु के लहू से कवर किया, वो काम के लिए नहीं है, परमेश्वर एंट्री करने के लिए है। समझ में आया? ओके, जब हम बोलते हैं हमारे दरवाजे चौखटों के ऊपर हम यीशु के लहू को लगाते हैं, तो दरवाजे चौखटों पर यीशु के लहू को हम दिमाग में क्या रखते हैं? ओ, मुझे शैतान से बचना है, मुझे शैतान से बचना है। कम ऑन, ये वो नहीं है, ये वाला ऐसा है कि परमेश्वर वहां एंट्री करता है। हालेलुया, परमेश्वर के स्वर्गदूत एंट्री करते हैं। समझ में आया? परमेश्वर के बेनिफिट्स देने वाले मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स एंट्री करते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड है वो। समझ में आया? उनको हमको पूछना नहीं पड़ता है मे आई कम इन। समझा? उनको परमिशन हो जाता है, जहां यीशु का लहू लगा है फेवर हमारा पीछा करता करता आता है। श्योरली गुडनेस, निश्चित भलाई और करुणा हमारा पीछा पीछा करते हुए जीवन भर हमारा पीछा करते हुए आएगी। लिखा है ना भजन संहिता में। हाँ, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि यीशु के लहू का बेनिफिट है वो। ओके, जब हम यीशु का लहू यूज करते हैं तब परमेश्वर के स्वर्ग का सारा सिस्टम उस रास्ते से एंट्री करता है। आमीन। हाँ, तो अभी आप जब भी यीशु का लहू लगाओगे तो वो फियर से नहीं करना है। ओके, कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अरे नहीं यीशु का लहू नहीं लगाया तो ऐसा हो, वो काम के लिए नहीं है। यीशु का लहू आपको परमेश्वर को एंट्री करने का, परमेश्वर के सिस्टम को आपसे कनेक्ट होने का जरिया है, वो रोड वे है, और यही रोड वे शैतान नहीं चल सकता है। हालेलुया। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते से शैतान आ ही नहीं सकता है।
समझा? अगर वो आ सकता था तो फिर ये सारे तो विधि तो लिख के रखे हैं उसने, वो चलना चाहिए था। बराबर है ना? अगर वो विधि चलेगा तो कहाँ फंसेगा? पाप माफी में फंस जाएगा वो। और उसके लिए पाप माफी है ही नहीं। बराबर है ना? तो फिर वो पाप माफी के रास्ते चल भी नहीं सकता है। उसको उसको डर लगेगा, क्योंकि वो पाप के लिए, माफ होने के लिए रखा ही नहीं है। समझ में आया? समझा आपको? ओके। सैतान को पाप की माफी होने के लिए रखा ही नहीं है, तो वो पाप के माफी का रास्ता चल भी नहीं सकता है। ओके। जैसा खतना किया हुआ अगर है तो परमेश्वर का है, अगर खतना किया हुआ नहीं है तो परमेश्वर उसको नाश करेगा बोलता है। तो अगर ये पाप के माफी का रास्ता शैतान चलेगा तो उसको नाश नहीं करेगा क्या परमेश्वर? है ना? पाप के माफी का रास्ता किसको दिया है? आरोन को बोला है चलो, है ना? आरोन कौन है? याजक। हम और आप कौन है? याजक। बराबर है? ओके। तो हम पाप के माफी के रास्ते चलने वाले याजक है परमेश्वर के। समझ में आया? हम चल सकते हैं, हमारे लिए परमिटेड है ये रास्ता चलना। आने दो शैतान को ये रास्ते से चल के, देखो कैसे उसको परमेश्वर उड़ा देगा। समझ में आया? ओके। उसको परमिशन नहीं है ये रास्ते चलने का, हमको परमिशन है ये रास्ते चलने का। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको परमिशन है प्रार्थना करने का, शैतान को नहीं। आपको परमिशन है परमेश्वर से मांगने का, शैतान को नहीं। ओके। आपको परमिशन है परमेश्वर से कोई भी चीज, कोई भी अवस्था के बारे में डिस्कस करने का और उसके बेनिफिट्स को लेने का, शैतान को नहीं है। ओके। इसके लिए वो सिर्फ परमेश्वर के पास इसीलिए जाता है कि तूने सब कुछ उनको दे के रखा है, तो उनके बारे में कैसा न्याय नहीं करेगा देखता हूँ, उनकी गलतियों को मैं तेरे सामने लाता हूँ। समझा? तो वो सिर्फ गलती ढूंढने में बैठा हुआ है अभी। समझा? क्योंकि उसके पास मनुष्य के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ गलती दिखा के वो मनुष्य को गिराना चाहता है। समझा? ओके। अगर आप ये सारा वचन को अच्छे तरह से फॉलो करोगे, आप आज्ञा पालन करते रहोगे, तो निश्चित 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 शैतान हारता है। ठीक है? तो आप एक दिन का आज्ञा पालन रखो। आज पूरे दिन मैं परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करूंगी। ओके। गुड नाइट हो गया, फिर नेक्स्ट डे को दोबारा, आज पूरा दिन में। ओके। ईच 24 आवर्स आप परमेश्वर के आज्ञा पालन में चलना शुरू करो। आप जीतते 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 ही जाओगे, क्योंकि ये ताकत है, ये परमेश्वर का बैकिंग है हम लोग के लिए। ओके। इसके बिना आप अगर दिन में उतर जाओगे, दिन शुरू कर दोगे और परमेश्वर के बिना आप चलना शुरू करोगे, आपको लगता है आप सही चल रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है, आप गलत रास्ते में ऑलरेडी हो चुके रहते हैं। समझा? क्योंकि बीच का रास्ता नहीं है इसके लिए। ठीक है। अब हम आगे का पढ़ेंगे। 20 वचन अभी पढ़ा, 21 पढ़ेंगे। एंड दाउ शाल्ट टेक ऑफ द ब्लड दैट इज अपॉन द अल्टर एंड ऑफ द अनॉइंटिंग ऑयल एंड स्प्रिंकल इट अपॉन एरोन। देखो अभी यहाँ पे 21 वचन में देखो, आपको ब्लड अलग है और अनॉइंटिंग ऑयल अलग से बोला है। देखो पढ़ के क्या लिखा है 21 वचन। અને વેદી પરના રક્તમાંથી તથા અભિષેકના તેલમાંથી લઈને તું હારૂન પર તથા તેના વસ્ત્ર પર ને તેની સાથે તેના દીકરાઓ પર તથા તેઓના વસ્ત્ર પર તે છાટ, એમ તે તથા તેના વસ્ત્રો ને તેની સાથે તેના દીકરાઓ તથા તેઓના વસ્ત્રો પવિત્ર થશે। देखो यहाँ पे अभिषेक का तेल अलग से दिया है और लहू जो है वो रैम का लहू जो है वो अलग से दिया है। ओके। तो हमारे लिए भी दोनों चीजें मौजूद है, प्रभु यीशु का लहू भी है और पवित्र आत्मा भी है। आमीन। ओके। हम अभिषेक क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगा है। ठीक है। तो हम पहचाने जाते हैं प्रभु यीशु के है करके, परमेश्वर के आत्मा के कारण हम पहचाने जाते हैं कि हम प्रभु यीशु के लोग हैं। समझा? अब हम प्रभु यीशु के लोग हैं तो हम प्रभु यीशु के रास्ते चलते हैं। अब
परमेश्वर के रास्ते जब हम चलते हैं तो हमारे ऊपर जो भी शैतानी जगत के हमले होते हैं, उस हमले के बीच में रहते हुए हमको 3 चीज यूज करना है, यीशु के लहू को, वचन को, गवाही को, और आगे बढ़ते जाना है। समझ में आया अभी आपको हमारा मसीह लाइफ कैसे आगे जाता है? अगर ये 3 हथियार के विषय में आप चौकस रहेंगे ना, तो आपको कोई भी जगह में अटकेंगे नहीं, क्योंकि हम अंधकार के अंदर से जा रहे हैं, अंधेरे के अंदर से जा रहे हैं। ये 3 हथियार एकमात्र ऐसा है जो अंधेरे से हमको अलग निकाल के रास्ता बना बना के हमको आगे बढ़ने दे रहा है। आमीन। इसके लिए हमारा और परमेश्वर का संपर्क बना रहना बेहद जरूरी है। जिस दिन आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, बाइबल रीडिंग करना छोड़ देते हैं, या जिस दिन आप ऐसा कुछ करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कुछ तो ऐसे बातों में फंस जाते हैं जहां आपका समय कट जाता है, ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा होता है, तो यहाँ पे आप परमेश्वर का आत्मा का जो कनेक्शन है, कांटेक्ट पॉइंट है, उसको वीक कर देते हैं। समझ में आया? ओके वो इसके लिए आपको वो वीक कांटेक्ट पॉइंट होने की वजह से ना परमेश्वर आपको कुछ हेल्प कर पाता है, ना आप परमेश्वर की तरफ बढ़ पाते हैं। ओके आपका कांटेक्ट पॉइंट जारी रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी से करना है आपको। ओके उसको घटने नहीं देना है, उसको बढ़ाते रहना है, उसको पक्का बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आप फैसला करो किस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ पक्के मजबूत बने रहेंगे। ओके अब आप बोलेंगे मैं मन में प्रभु 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 करते बैठूंगी, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो आत्मा वीक हो जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट आपका वीक हो जाएगा। अब कांटेक्ट पॉइंट वीक हो जाएगा, इसका मतलब क्या बनता है? क्या परमेश्वर और आपके बीच में वीकनेस आया? नहीं, परमेश्वर का सिस्टम है। समझा? जैसा वचन में लिखा है, निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी। लेकिन अगर आपने वचन पढ़ना नहीं सीखा, वचन के पीछे चलना नहीं सीखा, आप बोर कर लेते अपने आप को, प्रार्थना नहीं करना है, कुछ नहीं, बस अपने मर्जी से हाँ हालेलुया हालेलुया करेंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, आराम से जिएंगे, फिर आप मनन करेंगे प्रभु तो कितना अच्छा है, कितना भला है, और वचन नहीं पढ़ेंगे। ओके समय बहुत प्यारा 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 गुजारेंगे परमेश्वर के मनन करने में, लेकिन आप वचन नहीं पढ़ेंगे। अब क्या हो जाता है, जब भलाई आपका पीछा करने के लिए बोला गया है, वो सिस्टम आपका पीछा नहीं कर सकेगी। समझा आपको? क्योंकि वो सिस्टम का जो ब्रिज है, वो हम कैसे आत्मिक लॉ चलते हैं, ओके आत्मिक कानून हम कैसे चलते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य हमको बैकिंग करता है। समझा? वो काम होने के लिए हमको कंटिन्यू परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना पड़ता है। ओके कंटिन्यू उसके आज्ञा पालन में बने रहना पड़ता है, ये कारण से कि हमको परमेश्वर के स्वर्ग का बैकिंग बना रहे। ओके हमको स्ट्रगल ना करना पड़े। ओके हमको प्रेयर्स का जवाब जल्दी जल्दी मिलता जाए। ठीक है हमको बहुत जल्दी परमेश्वर का फेवर मिलता जाए, बहुत जल्दी हमारे लिए कुछ भी परमेश्वर से चाहिए वो जल्दी जल्दी हम प्राप्त कर सके। ये सिस्टम है परमेश्वर का, ये सिस्टम हमारा परमेश्वर के ओबीडियंस के ऊपर डिपेंड है। ओके हम जितना आज्ञा पालन में जाएंगे उतना ये सिस्टम हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। जितना हम डिसओबीडियंस में अनाज्ञा पालन में चलेंगे उतना ये सिस्टम हमारे बीच में कमजोर पड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाता है हमारे लिए। आया समझ में? अब ध्यान रखना है आपने, आप क्यों प्रभु में ऐसे मजबूत होना है। जब भी आप प्रभु के काम करते हो क्यों पैशनेट होना है, क्योंकि आपका पैशन मायने करता है, आपका धुन मायने करता है कि आप आत्मा में मजबूती तैयार करके रखे है। अब आप कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसको वैल्यू, परमेश्वर का सिस्टम उसको वैल्यू करेगा। परमेश्वर तो वैल्यू कर दिया है आपको, लेकिन आपको उसके सिस्टम का कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? आपको उसके सिस्टम का चाहिए, इसकी वजह से आपने क्या करना चाहिए?
हाँ, मैं हूँ गैस पे, हो गया मेरा, मम्मी से बात हो गई। ओके ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, कंप्लीट करेंगे। आपका तो वैसे भी हो गया ना हिंदी, हम हाँ ये वाला हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ तक पढ़ा था आपने, याद है? एक मिनट 21 29 का 21 शायद से एक नहीं पता मुझे वही है क्या। ये ठीक है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपको समझा ना ये कैसा है? परमेश्वर परमेश्वर ने बोला मेरे पास ऐसा रास्ता है जो किसी को मालूम नहीं है। राइट ओके, परमेश्वर के पास ऐसा कोई रास्ता है जो मालूम नहीं है किसी को भी। वो कैसा रास्ता है? यही वो रास्ता है। ये विधियां जो दिखाया गया है ना, ऐसे रास्ते हैं परमेश्वर के जिसके अंदर से शैतान प्रवेश नहीं कर सकता है। ओके, ये रास्ते से जो चल के आएगा उसको शैतान परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 22 वर्स से। ऑल्सो दाउ शाल टेक ऑफ द रैम द फैट एंड द rump and the fat that covereth the inwards and the caul above the liver and the two kidneys and the fat that is upon them and the right shoulder, for it is a ram of consecration, and one loaf of bread and one cake of oiled bread and one wafer out of the basket of the unleavened bread that is before the Lord. And thou shalt put all in the hands of Aaron and in the hands of his sons, and shalt wave them for a wave offering before the Lord. अब ये एक ऑफरिंग देखो, वेव ऑफरिंग। ठीक है, सिन ऑफरिंग हमको मालूम है। ठीक है, मीट ऑफरिंग्स, अन्न बलिदान, वो भी पता है। हाँ, और ये एक वेव ऑफरिंग। ओके, आप 24 वचन में देखो उसका नाम क्या लिखा है। इंग्लिश में ये वेव ऑफरिंग लिखा है। यहाँ पे लिखा है आरती करेंगे, आरती अर्पण ऐसा लिखा है। हिंदी में जाने दो, हिंदी बाइबल में क्या लिखा है पता नहीं। ओके, 25 वर्ष पर क्या नहीं, ठीक है। एंड दाउ शाल्ट रिसीव and thou shalt receive them of their hands, and burn them upon the altar for a burnt offering, for a sweet savour before the Lord. It is an offering made by fire unto the Lord. And thou shalt take the breast of the ram of Aaron's consecration, and wave it for a wave offering before the Lord, and it shall be thy part. And thou shalt sanctify the breast of the wave offering and the shoulder of the heave offering, which is waved and which is heaved up of the ram of the consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons. And it shall be Aaron's and his sons by a statute forever from the children of Israel, for it is an heave offering, and it shall be an heave offering from the children of Israel of the sacrifice of their peace offerings, even their heave offering unto the Lord. And the holy garments of Aaron shall be his sons after him, to be anointed therein and to be consecrated in them.
and that son that is priest in his stead shall put them on 7 days when he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place. And thou shalt take the ram of the consecration and seethe his flesh in the holy place. मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बोलूं? बोलो। देखो, आप जब ये पढ़ते हो तो आपको एक बात पता चलता है, यहाँ पर सब याजक को दिया गया काम है। कोई यहाँ पर इज़राइल के मतलब ऐसे कोई भी लोग ऐसा नहीं, जो याजक करेगा याजक के पीछे पीछे उनके लोगों ने करना है, ठीक है। अब देखो, ये करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, और इसके आगे कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। अगर ये करते हुए आएंगे तो एंड रिजल्ट में उनको परमेश्वर जो देना चाहता है वो उनको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उनको कुछ ऑफरिंग्स के नाम बताए, यानी हमको जो मालूम है वो सब ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, मीट ऑफरिंग्स, ये सब मालूम है हमको। ये एक वेव ऑफरिंग, हीव ऑफरिंग, ये सब हम जो पढ़ते हैं, ये कुछ हमको इतना इसका जानकारी नहीं था, है ना। लेकिन ये ऑफरिंग है। ऑफरिंग यानी ये देखो, हम बोलते हैं ना पाप का बलिदान, अन्न का बलिदान। हाँ, तो पाप का बलिदान करने से क्या हो जाता है? पाप दूर हो जाता है। अन्न का बलिदान करने से क्या होगा? अन्न दूर हो जाएगा, बराबर है ना। मीनिंग एक ही बनता है ना, है ना। आप किसी भी चीज को बलिदान करते हो यानी आप अपने आप से वो अलग कर रहे हो, बराबर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पाप को आप दूर कर रहे हो, ठीक है, बलिदान कर रहे हो, उसका तरीका है वो। अन्न का बलिदान कर रहे हो, ओके। हीव ऑफरिंग, वेव ऑफरिंग, ठीक है। आप उसका बलिदान कर रहे हो, उसका त्याग कर रहे हो, छोड़ रहे हो उसको, ओके। अब उसको छोड़ रहे हो, आप अलग कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो अपने अंदर से, ठीक है। आप उसको निकालने का तरीका कैसा कैसा है वो सब विधियों में दिया गया है, ठीक है। अब आपने ये सब काम कर लिया, अब आप किसकी विधि से चले हैं? परमेश्वर के, ठीक है। आप परमेश्वर जो कह रहा है वो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा, बराबर है। हाँ, अभी क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं। अगर इतना सब विधि करके लोग आ रहे हैं आगे, तो डेफिनेटली एंड रिजल्ट में जो परमेश्वर ने उनके लिए तय करके रखा है उनको वो मिलना ही मिलना है, बराबर है ना। हम आगे पढ़ेंगे। ओके, 29 वर्स से पढ़ेंगे। एंड द होली गारमेंट ऑफ Aaron shall be his sons after him, to be anointed therein and to be consecrated in them. And that son that is priest in his stead shall put them on 7 days when he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place. And thou shalt take the ram of the consecration and seethe his flesh in the holy place. And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram and the bread that is in the basket by the door of the tabernacle of the congregation, and they shall eat those things wherewith the atonement was made to consecrate and to sanctify them. But a stranger shall not eat thereof because they are holy. देखा 33 वचन में देखो क्या लिखा है, गुजराती में देखो आप क्या लिखा है, 29 अध्याय का 33 वचन। ओके। અને જેથી પ્રાયશ્ચિત કરાયું હોય તે વસ્તુઓ તેઓ ખાય, એ માટે કે તેઓ પ્રતિષ્ઠિત તથા પવિત્ર થાય, પણ તેઓમાંથી પારકો ન ખાય, કેમ કે તે પવિત્ર છે। आया समझ में? हाँ, विधि को चलने के बाद ही वो पवित्र बनेगा। पढ़ा आपने पूरा वचन? हाँ, पढ़ा। विधि के बाद ही वो पवित्र ठहरता है, और विधि के अनुसार ना होने वाला इंसान उसको खा नहीं सकता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? पवित्रता का रास्ता अपवित्र नहीं चल सकता है, समझा? पवित्रता, हम शुद्धता, पवित्रता हम है अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। और हमारा शरीर उससे मतलब नहीं रखता है, हमारा आत्मा उससे मतलब रखता है। अगर हमारा आत्मा सीधाई के रास्ते से है, पवित्र जाति में है, तो हम प्राण और शरीर हम पहचान में
पवित्र जाति है। समझ में आया आपको? हमारे कृत्यों से हमको पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे हम एक नॉर्मल तरह से हमको पनिशमेंट्स लेना पड़ेगा अगर हमने परमेश्वर का जो कहता है वचन मत करो, और हम शरीर से अगर कोई गलत काम करते तो हम उसके पनिशमेंट्स लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमको दोष नहीं लगाता है। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल देखो पनिशमेंट क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल श्योरली, ओके, निश्चित भलाई और करुणा सदा सर्वदा जीवन भर मेरा पीछा करती रहेगी, ठीक है। अब ये सिस्टम है परमेश्वर का। अब अगर मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया तो ये सिस्टम मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके, यही पनिशमेंट है। फिर अगर ये सिस्टम मुझे नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा? श्योरली बैडनेस, है ना? श्योरली सॉरो, श्योरली सिकनेस, ऐसा हो जाएगा ना, फिर ऑपोजिट हो जाएगा ना इसका, बराबर है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैंने विश्वास नहीं किया ना, इसकी वजह से मुझे पनिशमेंट आया। आया समझ में? वो पनिशमेंट नहीं है, वो सिस्टम आपको नहीं यूज हो गया, ओके, उसका ऑपोजिट सिस्टम आपको मिल गया। समझ में आया आपको? ओके, इस तरह से हमारे लाइफ का हिस्सा है। अगर हम परमेश्वर में सही ढंग से चलते रहेंगे तो हमारे हिस्से में वो सब सिस्टम आ जाता है जो परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के सही ढंग से चले नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलेंगे, ओके, कुछ भी करेंगे, जैसा परमेश्वर कहता है नफरत मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और हम फिर भी करेंगे, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम जो देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगा। जो उसके बिना वाला सिस्टम है वो सब मिल जाएगा। फिर हम बोलते हैं हाँ मैंने नफरत किया था ना, इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट नहीं, सिस्टम चेंज हो गया। समझ में आया आपको? कितना आसान है हमारा ओबे करना, परमेश्वर के वचन से चलना कितना आसान है। हमारे साथ सिस्टम बना रहता है परमेश्वर का, उसको छोड़ के चलना कोई बात नहीं है, नेगेटिव सिस्टम चलता है हमारे साथ फिर। कितना आसान है। ओके, हाँ। और परमेश्वर का पवित्र सिस्टम जो भी चलता होगा ना, जैसा परमेश्वर का वचन लोग भी मानते हैं, ओके, अच्छे से रहना, शांति से रहना, ये सब मानते हैं, लेकिन वो सिस्टम का बेनिफिट सिर्फ उनको उतने ही तक मिलता है जितना उन्होंने माना है, ओके। वो परमेश्वर की जाति नहीं बन जाते हैं, समझा आपको? वो फिर भी पापी रहते हैं, ओके। हेलो, समझा समझा, हाँ हेलो, हाँ, ओके, वो फिर भी पापी रहते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को ऐसे लोगों का बिहेव देख के नहीं चलना है कि वो तो मसीह जैसे बिहेव करते हैं, वो तो बस बिल्कुल बाइबल जैसा है, पवित्र बाइबल जैसा है, वही बिहेव करते हैं, बस वो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिए, तो वही तो उनकी पहचान है, ओके, वही तो उनकी पहचान है, वो अपवित्र है, ओके। तो हम पवित्र जाति है और वो अपवित्र जाति है। अब कोई पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, लेकिन उसके शरीर के कोई गुण आपको पसंद नहीं आ रहे, आप उसके बारे में बोल सकते हैं लेकिन उसको अपवित्र नहीं कह सकते आप। समझ में आया आपको? ओके, उसके ऊपर ये छाप लग चुकी है कि वो पवित्र जाति है। आप उसके गुणों को देख के उसको दोष नहीं लगा सकते हैं। हाँ, वो उसके गुणों का असर भोग रहा है, समझा? क्यों उसके नेचर में गलत है, क्यों उसके गुणों में गलत है? क्योंकि उसका वचन में आज्ञा पालन नहीं है। अगर ये आज्ञा पालन उसका सही नहीं है तो फिर उसका ऑपोजिट क्या है? नेगेटिविटी उसके लाइफ में रहेगा, है ना? तो आपको उसको आज्ञा पालन सिखाना पड़ेगा, आपको उसके जीवन में आज्ञा पालन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे उसका आज्ञा पालन बढ़ता जाएगा पॉजिटिविटी एंट्री करने लगेगी, क्योंकि वो सिस्टम है वैसा। कितना आसान है, अभी सोच में आ रहा है ना आपको, है ना? क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है इसके अंदर, हम खुद जिम्मेदारी उठा रहे, ओके। हमको मनमानी है, हमारे पास मनमानी है, तो हम मनमानी करते हैं, लेकिन सिस्टम भी तो चेंज हो जाता है ना फिर। ओके, और हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने पनिश किया, परमेश्वर ने पनिश किया। परमेश्वर ने पनिश नहीं किया, हमने जो किया उसका करनी का भरनी ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सिस्टम
प्रॉब्लम में डालते हमको परमेश्वर की तरफ से हो जाएंगे ना कंप्लीटली। अब परवाह नहीं करना है हमने क्या है कैसे। मैंने आपको आज स्टार्ट करने के वक्त ही बता दिया ना, हमने अपनी स्लेट कंप्लीट क्लीन करके अब हम अपने लाइफ में हमने कैसे रहना है हम लिख सकते हैं उसको, है ना, और वही बना रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम? जो परमेश्वर कहता है वही हम है। समझ में आया? हम अपने लिए दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं रखेंगे कि ये एल्डर है, ये बुजुर्ग है, ये छोटा है, ये नाटा है, ये मोटा है, कुछ नहीं देखना है। हम जो परमेश्वर कहता है बस वो आंखें लेके हमने चलना है। ओके, सब कुछ को हमने वचन की आंखों से देखना है, तब हमारा जो फेवर है परमेश्वर के राज्य में से आने का वो सिस्टम हमारे साथ होने लगेगा। समझा? नहीं तो हमारे साथ वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, हम मसीह है लेकिन हम जो चल रहे हैं ना वो सिस्टम नेगेटिविटी का सिस्टम हमारे साथ है, पॉजिटिविटी का नहीं आता है। जब चल तो रहे मसीह में लेकिन एंड रिजल्ट हम देख रहे जो संसार देता है। ओके, एंड रिजल्ट हम ये नहीं देख रहे कि जो वचन देता है हमको वचन के अनुसार एंड रिजल्ट आएगा, ये हमारा दिमाग नहीं सोच रहा है। हम ये सोच रहे कि एंड रिजल्ट जो संसार में होता है वही हमारे साथ होगा। ठीक है, ये गलती कर दे हम लोग। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 34 वर्चन से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ आउट ऑफ द फ्लैश ऑफ द कंसिक्रेशंस और ऑफ द ब्रेड रिमेन unto the morning, then thou shalt burn the remainder with fire. It shall not be eaten, because it is holy. And thus shalt thou do unto Aaron and to his sons according to all things which I have commanded thee. 7 days shalt thou consecrate them, and thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement, and thou shalt cleanse the altar when thou hast made an atonement for it, and thou shalt anoint it to sanctify it. 7 days thou shalt make an atonement for the altar and sanctify it, and it shall be an altar most holy. Whatsoever toucheth the altar shall be holy. Now this is that which thou shalt offer upon the altar, 2 lambs of the first year, day by day continually. The one lamb thou shalt offer in the morning, and the other lamb thou shalt offer at even. And with the one lamb 1/10 deal of flour mingled with the 4th part of an hin of beaten oil, and the 4th part of an hin of wine for a drink offering. And the other lamb thou shalt offer at even. Shalt do thereto according to the meat offering of the morning, and according to the drink offering thereof, for a sweet savour, an offering made by fire unto the Lord. This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. देखो 42 वचन क्या कहता है? कौन सा? 29 चैप्टर 42 वचन 42. ओके। તે પેઢી દર પેઢી યહોવાની સમ્મુખ મુલાકાત મંડપના બારણા આગળ સદાનું ધર્માર્પણ થાય, ત્યાં તમારી સાથે વાત કરવાની માટે હું તમારી મુલાકાત કરીશ. ફરી એકવાર વાંચીશું. તે પેઢી દર પેઢી યહોવાની સમ્મુખ મુલાકાત મંડપના બારણા આગળ સદાનું ધર્માર્પણ થાય, ત્યાં તમારી સાથે વાત કરવાની માટે હું તમારી મુલાકાત કરીશ. देखो क्या लिखा है वहां पर, वेयर आई विल मीट यू, मतलब उसके बाहर नहीं है परमेश्वर। समझ में आया? जब आप ये सब चलते 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 आओगे तब आपको एंड रिजल्ट ये है कि परमेश्वर वहां आपका इंतजार कर रहा है। समझा? और हम क्या सोचते हैं कि बस हम बिना फास्टिंग के ही परमेश्वर को उसके सिस्टम हमको मिल जाए। ओके, बिना प्रार्थना किए वो सिस्टम हमारे फेवर करे। ओके, वो सिस्टम का और हमारा लैंग्वेज मिसमैचिंग हो जाता है।
समझा? वो सिस्टम परमेश्वर का और हमारा चाल चलन मिसमैचिंग हो जाता है। इसके लिए रिदम नहीं है उसके अंदर, इसलिए एक मन नहीं हो जाता है उसके अंदर। हमको जो चाहिए वैसा सिस्टम से हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमको परमेश्वर का ये रहस्य हमको समझ में आना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे 43 verse से, and there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory, and I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar I will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest of office, and I will dwell among the children of Israel and will be their God. And they shall know that I am the Lord their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them. I am the Lord their God. कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। ओके, चैप्टर 30 हम पढ़ेंगे। The altar of incense, the ransom of souls, the brazen laver, the holy anointing oil, the composition of the perfume. First verse से पढ़ेंगे। And thou shalt make an altar to burn incense upon, of shittim wood shalt thou make it. A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof. Per square shall it be, and 2 cubits shall be the height thereof. The horns thereof shall be of the same, and thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof and the sides thereof round about, and the horns thereof, and thou shalt make unto it a crown of gold round about, and 2 golden rings shalt thou make to it under the crown of it by the 2 corners thereof. Upon the 2 sides of it shalt thou make it, and they shall be for places for the staves to bear it withal. And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning when he dresseth the lamps. He shall burn incense upon it, and when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering, neither shall ye pour drink offering thereon. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations. It is most holy unto the Lord. And the Lord spake unto Moses, saying, When thou takest the sum of the children of Israel, after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the Lord, when thou numberest them, that there be no plague among them when thou numberest them. This they shall give every one that passeth among them that are numbered half a shekel after the shekel of the sanctuary. A shekel is 20 gerah, and half a shekel shall be the offering of the Lord. Every one that passeth among them that are numbered from 20 years old and above shall give an offering unto the Lord. The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the Lord to make an atonement for your souls. And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation, that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord, to make an atonement for your souls. And the Lord spake unto Moses, saying, Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass to wash withal, and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein. For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat when they go into the tabernacle of the congregation,
they shall wash with water, that they die not. Or when they come near to the altar to minister to burnt offering made by fire unto the Lord, so they shall wash their hands and their feet, that they die not. And it shall be a statute forever to them. देखो यहाँ पर एक वचन देखो, कौन सा? 20 और 21, 30 अध्याय का। इसका 20 और 21। એમ જ તેઓ હાથ પગ ધોવે એ માટે કે તેઓ મરે નહીં, અને તે તેઓને સારું, એટલે પેઢી દર પેઢી તેને સારું તથા તેના સંતાનને સારું સદાનો વિધિ થાય। 22 भी करना है। 20 और 21। यहोवाए मूसा 20 और 21। ओके। તેઓ મુલાકાત મંડપમાં બેસે અથવા સેવા કરવાને માટે, એટલે યહોવાને સારું હોમ યજ્ઞ બાળવાને માટે વેદી પાસે આવે, ત્યારે તેઓ માર્યા ન જાય માટે પાણીથી સ્નાન કરે। એમાં તેઓ હાથ પગ ધોવે એ માટે કે તેઓ મરે નહીં। एक मिनट रुको। अब ये लोग याजक लोग हैं, बराबर है ना? ओके। परमेश्वर का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी शरीर का खतरा है उनके ऊपर। देखा, मरने का खतरा है उनके ऊपर। ये क्या ये शैतान से है? नहीं, है ना? बराबर है ना? हाँ, तो आप और हमको ये समझ में आना चाहिए, मृत्यु सिर्फ शैतान से नहीं आती है। ओके, परमेश्वर ने मृत्यु का रास्ता अलग किया है हमारे से, हमारे पास नहीं है मृत्यु, समझा? लेकिन ओबीडियंस इज मस्ट। ओके, हम अगर कुछ डिसओबे करेंगे और उस क्षेत्र में मृत्यु है तो हम शिकार हो सकते हैं। समझ में आया? हाँ, तो परमेश्वर उसका जिम्मेदार नहीं है। हाँ, हम खुद जिम्मेदार है, समझा? यहाँ पे ऑलरेडी बोला है, ऑलरेडी बता दिया, अगर उन्होंने हाथ पांव नहीं धोया तो वो मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो लोग हाथ पांव धोकर मेरे सामने आया करे। अब ये कितना सेंसिटिव है, इंसान भूल सकता है एक आध दिन, बराबर है ना? हाँ, लेकिन परमेश्वर का वैसा सिस्टम नहीं है। जब परमेश्वर ने इजराइल को ले लिया अपने लिए जाति बना के, ठीक है, तो उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उनको गाइड करता है, लीड करता है, याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, वैसा 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 वो लोग करते जाते हैं, वो लोग मरते नहीं है। समझा? जब तक परमेश्वर का आत्मा उनको सहायता कर रहा है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन जैसे ही वो उसके कोई आज्ञा पालन तोड़ा होगा, ठीक है, खत्म। वहां जाके क्या हो जाता है, वो परमेश्वर का आत्मा उनसे हट जाता है, मिस्टेक हो जाती है। समझ में आया? उतना टाइम के लिए वो मिस हो सकता है उनके लाइफ को। समझ में आया? कितना डेंजर है देखो डेथ का। हाँ, हम लोग सोचते हैं हम लोग परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, हमको कुछ नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं तो कम से कम तुम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट तो करो, है ना? हम सच्चाई के रास्ते चल रहे हैं। हाँ, एंड रिजल्ट हम संसार के दृष्टि से देखेंगे, तो ये भी तो अनाज्ञाकारिता है ना। कैसे गारंटी दे सकते हैं हम सही रास्ते चल रहे हैं फिर? बराबर है ना? और फिर क्या करेंगे, हम परमेश्वर को दोष देंगे। एक साल का बाइबल पढ़ना योजना। हम हिंदी बाइबल BSI में से पढ़ेंगे निर्गमन 29 और 30वां चैप्टर। हम पढ़ेंगे 29। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे का बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत ले आना।
फिर हारून और उसके पुत्र को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्र की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी हथेलियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से हथेलियाँ ढपी रहती है उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्र के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे, वह यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्र का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी है।
और यह इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्र समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चों को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाखमधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्ध दोनों देना, जिससे वह सुखदायी सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझसे बातें करूँ। मैं इस्राएलियों से वही मिला करूँगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहरूँगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। 30वां चैप्टर पढ़ेंगे हम। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर
उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। वही मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा सेकेल दे। वह सेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा सेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। तब जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब न तो धनी लोग आधे सेकेल से अधिक दे और न दरिद्री लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि वो मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 सेकेल सुगंधित अगर, और 500 सेकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्ष्य पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्र के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में
मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है। यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये सब एक तोल के हो और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्ष्य पत्र के आगे जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। 1 વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના. નિર્ગમન 29મો અધ્યાય અને 30મો અધ્યાય ગુજરાતી બાઇબલ 2 વિષયમાંથી વાંચીશું. નિર્ગમન 29મો અધ્યાય. અને મારી આગળ યાજક પદ બચાવવા સારું તેઓને પવિત્ર કરવાની જે ક્રિયા તારે કરવી તે આ પ્રમાણે: 1 વાછરડો તથા ખોડ વગરના 2 ઘેટાં તથા 2 ખમીર રોટલી તથા તેલમાં મોહેલી 2 ખમીર પોળીઓ તથા તેલ ચોપડેલા 2 ખમીર પાપડ લે. તે તું ઘઉંના મેદાના બનાવ. વળી તેઓને એક ટોપલીમાં મૂકીને તું વાછરડો તથા 2 ઘેટાં સુદ્ધા તેમને લાવ. અને તું હારૂનને તથા તેના દીકરાઓને મુલાકાત મંડપના બારણા પાસે લાવ ને તેઓને પાણીથી નહોડાવ. અને વસ્ત્ર લઈને તું હારૂનને અંગરખો તથા એફોદનો જામો તથા એફોદ તથા ઉડપત્ર પહેરાવ ને એફોદના કારીગરીથી વણેલા પટાથી તેની કમર બાંધ. અને તેને માથે તું પાઘડી મૂક ને પાઘડી પર પવિત્ર મુગટ રાખ. અને અભિષેકનું તેલ લઈને તે તું તેના માથા પર રેડ ને તેને અભિષિક્ત કર. વળી તું તેના દીકરાઓને લાવ ને તેઓને અંગરખા પહેરાવ. અને તું તેઓને એટલે હારૂનને તથા તેના દીકરાઓને કમરબંધ તથા ફાળિયા બાંધ. અને હંમેશના નિયમ તરીકે તેમને યાજક પદ મળે. અને તું હારૂનને તથા તેના દીકરાઓને પ્રતિષ્ઠિત કર. અને તું તે વાછરડાને મુલાકાત મંડપ આગળ લાવ. અને હારૂન તથા તેના દીકરાઓ વાછરડાના માથા પર હાથ મૂકે. અને યહોવાની આગળ મુલાકાત મંડપના બારણા આગળ તું વાછરડાને કાપ. અને વાછરડાના રક્તમાંથી લઈને તેને તારી આંગળી વડે વેદીના સિંગ પર લગાડ. અને તું વેદીના પાયા પાસે સઘળું રક્ત રેડી દે. અને તું આંતરડા પરની ચરબી તથા કલેજા પરનું અંતરપળ તથા 2 ગુર્દા તથા તેઓ પરની ચરબી લઈને તેમનું વેદી પર દહન કર. પણ વાછરડાનું માંસ તથા તેનું ચામડું તથા તેનું છાણ તું છાવણી બહાર અગ્નિથી બાળી નાખ. તે પાપાર્થાર્પણ છે. અને તું એક ઘેટો લે અને તે ઘેટાના માથા પર હારૂન તથા તેના દીકરાઓ હાથ મૂકે. અને તે ઘેટાને તું કાપ ને તેનું રક્ત લઈને વેદીની ચારે ગમ છાંટ. અને તું ઘેટાને કાપીને તેના કકડા કર ને તેના આંતરડા તથા તેના પગ ધોઈ નાખીને તેમને તેના કકડા તથા માથા સાથે મૂક. અને તું આખા ઘેટાનું વેદી પર દહન કર. તે યહોવાને સારું દહનાર્પણ છે. તે સુવાસને અર્થે યહોવાને સારું હોમયજ્ઞ છે. વળી તું બીજો ઘેટો લે અને હારૂન તથા તેના દીકરાઓ ઘેટાના માથા પર હાથ મૂકે. પછી તું તે ઘેટાને કાપ ને તેના રક્તમાંથી લઈને હારૂનના જમણા કાનની ટોચ પર તથા તેના દીકરાના જમણા કાનની ટોચ પર તથા તેઓના જમણા હાથના અંગૂઠા પર તથા તેઓના જમણા પગના અંગૂઠા પર તું તે રક્ત ચોપડ ને તે રક્ત વેદીની ચારે ગમ છાંટ. અને વેદી પરના રક્તમાંથી તથા અભિષેકના તેલમાંથી લઈને
તું હારૂન પર તથા તેના વસ્ત્ર પર ને તેની સાથે તેના દીકરાઓ પર તથા તેઓના વસ્ત્ર પર તે છાંટ. એમ તે તથા તેના વસ્ત્ર ને તેની સાથે તેના દીકરાઓ તથા તેઓના વસ્ત્રો પવિત્ર થશે. વળી તું ઘેટાની ચરબી તથા પૂંછડી તથા આંતરડા પરની ચરબી તથા કલેજા પરનું અંતરપડ તથા 2 ગુર્દા તથા તેમના પરની ચરબી તથા જમણી ખાંદ લે, કેમ કે તે પ્રતિષ્ઠાનો ઘેટો છે. અને 2 ખમીર રોટલીની જે ટોપલી યહોવા આગળ છે તેમાંથી તું 1 રોટલી તથા તેલમાંથી મોહેલી 1 પોળી તથા 1 પાપડ લે. અને તે સર્વ તું હારૂનના હાથમાં તથા તેના દીકરાઓના હાથમાં આપ. અને તું યહોવાની આગળ તેમની આરતી કરીને આરત્યર્પણ કર. અને તેઓના હાથમાંથી તેઓને લઈને તું યહોવા આગળ સુવાસને સારું વેદી ઉપર ધનાર્પણ પર મૂકીને બાળ. તે યહોવાને સારું હોમયજ્ઞ છે. અને હારૂનની પ્રતિષ્ઠાના ઘેટાનો સીનો લઈને તું યહોવાની આગળ આરત્યાર્પણને સારું આરતી કર અને તે તારો હિસ્સો થાય. અને પ્રતિષ્ઠાના ઘેટાના આરત્યાર્પણવાળો સીનો તથા ઉછળ્યાર્પણવાળી ખાંડ જેની આરતી કરવામાં આવે છે ને જે ઉછાળાય છે, એટલે જે હારૂન તથા તેના દીકરાઓને હિસ્સે આવેલું છે તે તું પવિત્ર કર. અને તે હારૂનનો તથા તેના દીકરાઓનો ઇસ્રાએલ પુત્રો પાસેથી સદાનો હક થશે, કેમ કે તે ઉછળ્યાર્પણ છે. અને તે ઇસ્રાએલ પુત્રો તરફથી તેઓના શાંત્યાર્પણના યજ્ઞોનું ઉછળ્યાર્પણ થાય, એટલે યહોવાને સારું તેઓનું ઉછળ્યાર્પણ થાય. અને હારૂનના પવિત્ર વસ્ત્રો તેની પછીના તેના દીકરાઓને સારું થાય કે તેઓ તે પહેરીને અભિષિક્ત તથા પ્રતિષ્ઠિત થાય. તેને ઠેકાણે જે દીકરો યાજક હોય તે જ્યારે મુલાકાત મંડપ મધ્યે પવિત્રસ્થાનમાં સેવા કરવાને જાય ત્યારે તે તેઓને 7 દિવસ સુધી પહેરે. અને તું પ્રતિષ્ઠાનો ઘેટો લઈને તેનું માંસ શુદ્ધ જગામાં બાફ. અને હારૂન તથા તેના દીકરાઓ ઘેટાનું માંસ તથા જે રોટલી ટોપલીમાં હશે તે મુલાકાત મંડપના બારણા આગળ ખાય. અને જેથી પ્રાયશ્ચિત કરાયું હોય તે વસ્તુઓ તેઓ ખાય, એ માટે કે તેઓ પ્રતિષ્ઠિત તથા પવિત્ર થાય. પણ તેઓમાંથી પારકો ન ખાય, કેમ કે તે પવિત્ર છે. અને જો પ્રતિષ્ઠાના માંસમાંથી અથવા રોટલીમાંથી સવાર સુધી કંઈ બાકી રહે તો તું તે બાકી રહેલાને અગ્નિથી બાળી નાખ. તે ન ખવાય, કેમ કે તે પવિત્ર છે. અને હારૂનને તથા તેના દીકરાઓને મેં જે સર્વ આજ્ઞાઓ તને આપી છે તે પ્રમાણે તું કર. 7 દિવસ સુધી તું તેમને પ્રતિષ્ઠિત કર. અને તું દરરોજ પાપાર્પણનો વાછરડો પ્રાયશ્ચિત માટે ચઢાવ. અને તું વેદીને માટે પ્રાયશ્ચિત કરે ત્યારે તેને તું શુદ્ધ કર. અને તેને પવિત્ર કરવાને માટે તું તેને અભિષિક્ત કર. 7 દિવસ સુધી તું વેદીને માટે પ્રાયશ્ચિત કર ને તેને પવિત્ર કર. અને વેદી પરિશુદ્ધ થાય. જે કંઈ વેદીને અડકે તે પવિત્ર થાય. હવે વેદી પર તારે જે ચઢાવવું તે આ પ્રમાણે: તું રોજ રોજ પહેલા વર્ષના 2 હલવાન હંમેશ ચઢાવ. 1 હલવાન તું સવારે ચઢાવ ને બીજો હલવાન સાંજે ચઢાવ. અને 1 હલવાનની સાથે પા હિન પીલેલા તેલમાં મોહેલો એફાનો 1/10 મેદો લેવામાં આવે. અને પર્યાર્પણને સારું પા હિન દ્રાક્ષારસ. અને બીજો હલવાન તું સાંજે ચઢાવ. ને સવારના ખાદ્યાર્પણ તથા પર્યાર્પણ પ્રમાણે તું તેને કર કે તે સુવાસને અર્થે યહોવાને સારું હોમયજ્ઞ થાય. તે પેઢી દર પેઢી યહોવાની સમ્મુખ મુલાકાત મંડપના બારણા આગળ સદાનું દહનાર્પણ થાય. ત્યાં તમારી સાથે વાત કરવાને માટે હું તમારી મુલાકાત કરીશ. અને ત્યાં હું ઇસ્રાએલ પુત્રોની મુલાકાત લઈશ. અને મંડપ મારા ગૌરવથી પવિત્ર થશે. અને હું મુલાકાત મંડપને તથા વેદીને પવિત્ર કરીશ. વળી મારી આગળ યાજક પદ બજાવવા સારું હું હારૂનને તથા તેના દીકરાઓને પવિત્ર કરીશ. અને હું ઇસ્રાએલ પુત્રો મધ્યે રહીને તેઓનો દેવ થઈશ. અને તેઓ જાણશે કે હું યહોવા તેઓનો દેવ છું, કે જે તેઓને મિસ્ર દેશમાંથી કાઢી લાવ્યો, એ માટે કે હું તેઓ મધ્યે રહું. તેઓનો દેવ યહોવા હું છું.
અધ્યાય 30 અને તું ધૂપ બાળવા સારું વેદી બનાવ, તું તેને બાવળની બનાવ, તે 1 હાથ લાંબી ને 1 હાથ પહોળી, એટલે તે ચોખંડી થાય અને તે 2 હાથ ઊંચી થાય. તેના સિંગ તેની સાથે સળંગ હોય અને તું તેને ચોખ્ખા સોનાથી મઢ, એટલે તેના મથાળાને તથા તેની ચારે ગમની બાજુઓને તથા તેના સિંગોને તું મઢ અને તેને સારું તું સોનાની ફરતી કિનારી બનાવ અને તેને સારું તેની કિનારી નીચે તું સોનાના 2 કડા બનાવ. બંને બાજુએ તેના 2 પડખા પર તું તેઓને બનાવ અને તેઓ તેને ઉંચકવાને માટે 2 દાંડાને સારું જગા થાય અને દાંડાઓ તું બાવળના બનાવ ને તેઓને સોનાથી મઢ. અને સાક્ષ્ય કોષ પાસેના પડદા આગળ, એટલે જ્યાં હું તને મળીશ તે સાક્ષ્ય પરના દયાસન આગળ તું તેને મૂક અને હારૂન તે પર સુગંધીદાર ધૂપ બાળે. રોજ સવારે જ્યારે તે બત્તીઓને સાફસૂફ કરે ત્યારે તે ધૂપ બાળે અને સાંજે જ્યારે હારૂન બત્તીઓ સળગાવે ત્યારે તે ધૂપ બાળે. તમારામાં પેઢી દર પેઢી તે યહોવાની આગળ સદાના ધૂપ તરીકે થાય. તે વેદી પર તમે અન્ય ધૂપ કે ધનાર્પણ કે ખાદ્યાર્પણ ચઢાવશો માં અને તે પર કંઈ પેર્યાર્પણ રેડશો માં. અને વર્ષમાં 1 વાર હારૂન તેના સિંગ પર પ્રાયશ્ચિત કરે. તમારી પેઢી દર પેઢી વર્ષમાં 1 વાર પ્રાયશ્ચિતના પાપાર્પણના રક્તથી તેને સારું તે પ્રાયશ્ચિત કરે. તે યહોવાને સારું પરમ પવિત્ર છે. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે ઇસ્રાયેલ પુત્રોની સંખ્યા કેટલી છે તે જોવા જ્યારે તું ગણતરી કરે ત્યારે તેમની ગણતરી થતી વખતે તેઓમાંનો દરેક પુરુષ પોતાના જીવને સારું યહોવાને ખંડણી આપે, એ માટે કે જ્યારે તેમની ગણતરી થાય ત્યારે તેઓ મધ્યે કંઈ મરકી ન આવે. તેઓ આ પ્રમાણે આપે. ગણમાં જેઓ દાખલ થાય તેઓમાંનો દરેક પુરુષ પવિત્ર સ્થાનના શેકેલ પ્રમાણે અડધો શેકેલ આપે. 20 ગેરાનો શેકેલ થાય છે યહોવાને અર્પણ તરીકે તે અડધો શેકેલ આપે. 20 વર્ષનો કે તેથી વધારે વયનો જે દરેક પુરુષ ગણમાં દાખલ થાય તે યહોવાને આ અર્પણ આપે. તમારા જીવને સારું પ્રાયશ્ચિત કરવાને માટે તેઓ યહોવાને અર્પણ ચડાવે ત્યારે દ્રવ્યવાન માણસ અડધા શેકેલ કરતાં વધતું ન આપે, તેમ દરિદ્રી તેથી ઓછું ન આપે. અને ઇસ્રાયેલ પુત્રો પાસેથી પ્રાયશ્ચિતના પૈસા લઈને તું તેને મુલાકાત મંડપની સેવાને અર્થે ઠરાવ, એ માટે કે તે તમારા જીવને સારું પ્રાયશ્ચિત કરવાને અર્થે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને સારું યહોવાની આગળ યાદગીરી રૂપ થાય. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે વળી હાથ પગ ધોવાને માટે તું પિત્તળનો હોજ બનાવ ને તેનું તળિયું પિત્તળનું થાય અને તું તેને મુલાકાત મંડપ તથા વેદીની વચ્ચે મૂક ને તેમાં પાણી રેડ. અને હારૂન તથા તેના દીકરાઓ તેમાં હાથ પગ ધુવે. તેઓ મુલાકાત મંડપમાં પેશે અથવા સેવા કરવાને માટે એટલે યહોવાને સારું હોમયજ્ઞ બાળવાને માટે વેદી પાસે આવે ત્યારે તેઓ માર્યા ન જાય માટે પાણીથી સ્નાન કરે. એમ જ તેઓ હાથ પગ ધુવે એ માટે કે તેઓ મરે નહીં. અને તે તેઓને સારું એટલે પેઢી દર પેઢી તેને સારું તથા તેના સંતાનને સારું સદાનો વિધિ થાય. વળી યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું તારી પાસે મુખ્ય સુગંધીઓ પણ લે, એટલે 500 શેકેલ ચોખ્ખો બોળ ને તેનો અડધો ભાગ એટલે 250 શેકેલ સુગંધીદાર તજ ને 250 શેકેલ સુગંધીદાર બરુ ને 500 શેકેલ દાલચીની. એ પ્રમાણે તું પવિત્ર સ્થાનના શેકેલ પ્રમાણે લે. વળી તું 1 હિન જૈતૂન ફળનું તેલ લે અને તું તેને પવિત્ર અભિષેકનું તેલ સુગંધી બનાવનારના હુન્નર મુજબ મિશ્ર કરેલી સુગંધી બનાવ. તે અભિષેકનું પવિત્ર તેલ થાય. અને તેથી તું મુલાકાત મંડપને તથા સાક્ષ્ય કોષને તથા તેના સઘળા પાત્ર સુદ્ધા મેજને તથા તેના સઘળા પાત્ર સુદ્ધા દીપવૃક્ષને તથા ધૂપવેદીને તથા તેના સઘળા પાત્ર સુદ્ધા યજ્ઞવેદીને તથા હોજને તથા તેના તળિયાને અભિષિક્ત કર. અને તું તેઓને પવિત્ર કર કે તેઓ પરમ પવિત્ર થાય. તેઓને જે કંઈ અડકે તે પણ પવિત્ર થશે. અને તું હારૂનને તથા તેના દીકરાઓને અભિષિક્ત કરીને પવિત્ર કર, એ માટે કે તેઓ મારી આગળ યાજકપદ બજાવે. અને તું ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે તમારી પેઢી દર પેઢી આ મારે સારું અભિષેકનું પવિત્ર તેલ થાય. તે માનવના દેહ પર ન રેડાય
ને તેના જેવી મેળવણીનું તમે કંઈ બનાવશો માં તે પવિત્ર છે ને તે તમારે સારું પણ પવિત્ર ગણાશે. જે કોઈ તેના સરખું કંઈ બનાવે અથવા જે કોઈ તેમાંનું પારકા માણસ પર રેડે તે તેના સમાજમાંથી અલગ કરાય. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું તારી પાસે સુગંધીદાર કરિયાણું લે, એટલે નાટાબ તથા સહેલેત તથા હેલ્બના એ સુગંધીદાર કરિયાણું ચોખ્ખા લોબાન સુદ્धा લે, દરેકને સરખા તોલ પ્રમાણે લે. અને તેનો તું ધૂપ એટલે સુગંધી બનાવનારના હુન્નર મુજબ સુગંધી બનાવ. તે મીઠાનો પટ દીધેલું નિર્મળ તથા પવિત્ર હોય. અને તેમાંથી કેટલુંક ઝીણું ખાંડીને તું તેને મુલાકાત મંડપમાં સાક્ષ્યકોષની આગળ જ્યાં હું તને મળીશ ત્યાં મૂક. તે તમારે સારું પરમ પવિત્ર ગણાશે. અને જે ધૂપ તું બનાવે તેના જેવી બનાવટનો તમે પોતાને વાસ્તે બનાવશો માં તે તને યહોવાને સારું પવિત્ર હોય. તેના જેવો જે કોઈ સૂંઘવાને માટે બનાવે તે તેના સમાજમાંથી અલગ કરાય. थैंक यू फादर गॉड, आपने जो वचन दिया परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા, જે અમને શીખવ્યા તેને માટે અમે हमें તમને फिट ધન્યવાદ एंड આપીએ फिक्स છીએ. कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ. विनती करते हैं, सुन और कबूल करना श्री यीशु मसीह के नाम में. आमीन आमीन आमीन. અમે આ વચનો દ્વારા ફિટ અને ફિક્સ કરો, અમે ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરનેસ ની અંદર લઈને આવો. ઈસુ નાસીના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો. આમીન આમીન આમીન. 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे. 2 વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના अकेले में बैठकर इसे पढ़ेंगे हम. એકલામાં બેસીને આને આપણે વાંચીશું. व्यक्तिगत समय में વ્યક્તિગત સમયની અંદર વાંચીશું. एक्ट्स 15 चैप्टर 22 वर्ष से 31 वर्ष तक, जोब 42 चैप्टर, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 22 वचन से 31 वचन तक, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय. પ્રેરિતોના કૃત્ય 15મો અધ્યાય 22 થી લઈને 31ની કલમ, અય્યુબ 42મો અધ્યાય. हम अपने फैसले ऐसे रखे हैं हमने कि हम अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे. અમે એવું વિચાર્યું છે કે આને અમે વ્યક્તિગત સમયની અંદર વાંચીશું, ताकि हम में परमेश्वर का आत्मा सुधार लाए वचनों से. કે જેથી એને પરમેશ્વરના આત્મા સુધાર લાવે આ વચન દ્વારા. जरूरी नहीं सभियों ने ऐसे पढ़ना है, जिसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हैं. જરૂરી નથી કે બધાએ જેવું કરવું, જેણે જે રીતના વાંચવું હોય તે રીતના તે વાંચી શકે છે. निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है वचन. ચોક્કસપણે આપણે એ જોવાનું છે કે પવિત્ર આત્મા આપણને એ વચનો શીખવે. निश्चित परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है. ચોક્કસપણે આપણે પવિત્ર આત્માનો લાભ ઉઠાવવાનો છે. प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे. आमीन आमीन आमीन. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણી સાથે, બધા સાથે હંમેશા હંમેશા બન્યા રહે. આમીન આમીન આમીન. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हमें आपके वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए. ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर. आमीन आमीन आमीन. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા. અમે આ વચનો દ્વારા ફિટ અને ફિક્સ કરો. ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરનેસની અંદર અમને લઈને આવો. ઈસુ નાસીના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા. આમીન આમીન આમીન.